ಈಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಾಜವರ್ಧನ್ ಅಹಮದ್ ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಲಾರಾ, ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಲಾರಾ. ವಿಜು ನಾಮದವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಶ ಸರ್ಪಂಚ್ ವಿಜು ನಾಮದವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜು ನಾಮದವರು ಇದೀಗ ತಾನೇ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಮುಂದಾದರು. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಲಾರಾ, ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇವರು. ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸತೀಶ್ ಅವರು ಬೌಲರ್, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರಿಂದ ಹಾಗೂ 1 ರನ್ ಪಡೆಯಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕೂಡ. ವೈಡ್ ಅಂತ ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗನೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವಿಜುವರ್ಧನ್ ಅಹಮದ್. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ರಭಸವಾಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಜುವರ್ಧನ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಡಬೇಕು. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಲಾರಾ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 3. ಮೊದಲನೇ ಓವರ್. ಸತೀಶ್ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರನ್ ಕೇವಲ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜುವರ್ಧನ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಅವರಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್. ರಭಸವಾಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೀಲ್ಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಗ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಬಾಲು ಹಾಗೂ 1 ರನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ 1 ರನ್ ಪಡೆಯಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ವಿಜುವರ್ಧನ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 4. ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅವರಿಂದ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಲಾರಾ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಸತೀಶ್ ಅವರಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್. ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೂ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದುವರೆಗೂ ಸತೀಶ್ ಅವರಿಂದ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಲಾರಾ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ ಡಿಸಿಸಿ ಉಮ್ರಾನ್ ತಂಡದಿಂದ. ರಭಸವಾಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಮನವಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಲಾರಾ ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಅವರು. ಡಿಸಿಸಿ ಉಮ್ರಾನ್ ತಂಡ ತಮ್ಮ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತರ್ ಬಡಿಗೆ ತಗೊಂಬ ಅಂತಲೇ ಓಡೊಂಟ್ರು ಎಲ್ಲರೂ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಕರು ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಶೀರ್ ಅವರಿಂದ ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ಯುನಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಟೈಲು. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ, ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ, ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ 4 ರನ್ಗಳು, 2 ವಿಕೆಟ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. 1 ओवर के बाद 4 रन 2 विकेट. थैंक यू सर. कुल मिलाकर रन संख्या देखेंगे तो 1 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 4 रन है. पहले बल्लेबाजी करते हुए दानेश्वरी क्रिकेट क्लब उमरानी के रन संख्या. अब यहाँ पर ऊंटवाड़ी के जो गेंदबाज है ये पूरी तरह से सफल हो चुके हैं. पहले ही ओवर में बट्टू जादगार यहाँ पर उपस्थित है. उनको मैं गुजारिश कर रहा हूं, आप मंच पर आइए. हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और श्वान से स्वागत करने के लिए डीजे भी तैयार है. गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज उमेश है. हल्के हाथों से जरूर खेला है. बल्लेबाज देखेंगे तो हट्टे कट्टे बल्लेबाज है. विजय यानी इस गांव के ये सरपंच भी है, वही यहां पर बल्लेबाजी करते हुए. लेकिन गेंदबाजी के मोर्चे पर ये उमेश की अगली गेंद. रिवर्स स्वीप, क्या बात, लाजवाब स्ट्रोक. मैदानात जो हा चौकार गेलाय ना, तो चौकार कोणता आहे तर सरपंच चौकार आहे. सरपंच चौकार. राजकारणात जबरदस्त अशा पद्धतीने फलंदाजी केली, त्यानंतर सरपंच झाले आणि मैदानात देखील या विजय भूमीवरती एक जबरदस्त अशा प्रकारचा विजयजी यांचा हा जबरदस्त चौकार. उमेशच्या चेंडूवरती जबरदस्त प्रहार केलाय. धाव संख्या 8. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पुढे सरसावतोय आणि या चेंडूवरती पुन्हा एकदा भिरकावून दिला. बरोबर हा चेंडू सीमा रेषेच्या दिशेने जातोय आणि हा चौकार धोका देखील विचार येतोय. ती चौकार ठोठावणार का? तिसऱ्या चेंडूवरती चौकार ठोठावला. आता मात्र हा चेंडू थोडासा आखूट टप्प्याचा चेंडू होता. फलंदाज या ठिकाणी पूर्णतः बीट होतोय. हा उमेशचा चेंडू मात्र उमेश मात्र पुन्हा एकदा. आता मात्र या चेंडूवरती क्षेत्ररक्षक येतोय. क्षेत्ररक्षकाला चेंडू पहिल्या प्रयत्नात पकडता येत नाहीये, त्यानंतर मात्र पकडला जातोय. तोपर्यंत मात्र विजयजींच्या खात्यात ही एकेरी धाव जाते. अब यहाँ पर देखेंगे अच्छी बल्लेबाजी हो रही है. अच्छे 2 स्ट्रोक बड़े स्ट्रोक आए और उसके बाद 1 रन मिलता हुआ और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ. कुल मिलाकर रन संख्या देखेंगे तो 13 रन है और 14 रन है. अगली गेंद अंपायर के बगल से गेंदबाजी करते हुए उमेश. ये देखिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज यहां पर पूरे बीट होते हुए और झटका लगता हुआ. विकेट के नुकसान पर रन संख्या देखेंगे तो 14 रन है. मित्रांनो,
मित्रांनो, मैदानाचे दोन फलंदाज बघताय ना, धानेश्वरी क्रिकेट क्लब धानेश्वरी 14 रन, धानेश्वरी क्रिकेट क्लब धानेश्वरी 14 रन। अगली गेंद, इस बार यहां पर गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज रहेंगे आनंद बिरादार। यहां पर बल्लेबाजी के लिए तैयार है, उमेश की गेंद खेलने के लिए आखिरी गेंद है। मित्रांनो जरा इकडे लक्ष द्यायचंय, मित्रांनो जरा इकडे लक्ष द्यायचंय। सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे, जे दोन्ही फलंदाज आहेत ते या स्पर्धेचे शिलेदार आहेत, आनंद आणि विजय यांच्याकरता जोरदार टाळ्या होत्या, बघूया कशा होतात त्या। अच्छी गेंद, इस गेंद को हल्के हाथों से जरूर खेला था, लेकिन इस बार गेंदबाजी के मोर्चे पर सतीश रहेंगे। अपना देखेंगे ये तीसरा ओवर है और सतीश का निजी देखेंगे तो पहला दूसरा ओवर है। पहले ओवर में 4 रन खर्च किए थे और 2 विकेट चपकाए थे। ये सफल गेंदबाज है, मेहनत करेंगे ना तो नहीं जाएगी बेकार। तो 2 शिकार बनाने वाले ये गेंदबाज यहां पर गेंदबाजी के मोर्चे पर ये तीसरा ओवर प्रगति पर सामने देखेंगे। खेलने के लिए ये बल्लेबाज तैयार है, आनंद है और उनको साथ देने के लिए स्ट्राइक एंड पर विजय नामद है। तो विजय नामद के लिए ये तीसरी ओवर की पहली गेंद और ये मुकाबला है आज के दिन का। ये देखिए क्या कर रहे हैं, तो पहले से ही अलग इरादा था, अलग अलग ढंग से कुछ करना चाहते थे, लेकिन ये जो गेंदबाज है होनहार वाली गेंदबाजी करते हैं। लेकिन इस गेंदबाज की तरफ आपकी नजर होनी चाहिए, ये सफल गेंदबाज है। पहले ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च किए थे, 2 विकेट चपकाने वाले वही गेंदबाज गेंदबाजी के मोर्चे पर। अब ये स्लोवर बन गेंद, इस गेंद को जरूर खेलते समय यहाँ पर गलती करते हुए और एक झटका लगता हुआ, चौथा झटका लगता हुआ और म्यूजिक बजता हुआ। कम ऑन डीजे। नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए श्रीधर है। देखते हैं श्रीधर किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। उनको धरकर रहना है मैदान में, तो ही यहां पर ये बड़ा स्कोर बन सकता है। आपको फाइटिंग टोटल बनानी है ना, तो मैदान में टिके रहने की जरूरत है। जरूर यहां पर अच्छा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, उसमें पूरी तरह से फंस गए थे। ये सफल गेंदबाज थे। मैं बार बार कह रहा था कि ये सफल गेंदबाज है, इसके सामने आपको संभल के खेलना है। फिर एक बार यहां पर ये गलती कर बैठे और गलती के बदौलत यहां पर 1 विकेट चपकाते हुए और 1 विकेट चपकाने के बाद अब गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज। ये देखिए श्रीधर के लिए, ये बिरादार के लिए अच्छी, ये आनंद बिरादर है ना, ये विकेट कीपिंग भी करते हैं, अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी भी करते हैं। लेकिन अब खेलने का मौका जरूर श्रीधर को मिलता हुआ। उमेश ने 1 विकेट चपकाया। जो सेठ बल्लेबाज था विजय नामद, इस बल्लेबाज को वापस भेजा है और वापस भेजने के बाद अब नए बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार है और श्रीधर खेलने के लिए तैयार है। और गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज उमेश अंपायर के बगल से
ये देखिए उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार अंपायर की तरफ से वाइड का इशारा आता हुआ और वाइड के साथ साथ स्कोर बढ़ता हुआ। कुल मिलाकर रन संख्या 4 विकेट के नुकसान पर 18 रन, तीसरा ओवर प्रगति पर है। जयंत चषक 2022 का हम घमासान दूसरा यहाँ पर दिन देख रहे, दूसरे दिन का ये अहम मुकाबला है। अगली गेंद ये देखिए यहाँ पर पूरी तरह से क्रॉस बैट से खेलने की कोशिश करते हुए, आड़े बैट से खेलेंगे तो जरूर यहाँ पर ये बल्ले के बीचों बीच गेंद नहीं आ सकती है, तो आपको सीधे बल्ले से खेलना है, मेरिट के हिसाब से खेलना है। मेरिट के हिसाब से खेलेंगे ना तो श्रीधर को यहाँ पर ये बल्ला और वो गेंद का संपर्क है वो अच्छी तरह से लग सकता है। फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज, ये देखिए उठाकर खेलने की कोशिश, हवा में गेंद और यह गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। श्रीधर ने अब यहां पर चपराक लगाई। थैंक यू। श्रीधर ने जरूर यहां पर बल्ले के बीचों बीच गेंद ली और इस गेंद को बाहर कर दिया है। और ये देखेंगे ये आराम से चौवा तवा, अच्छी कोशिश है, लंगोन की दिशा में गेंद बाहर जाती हुई और बाहर जाने के बाद 22 रन हो चुके और 22 के हमारे जो स्कोरर है ये अच्छा काम कर रहे। साहिल जादगार यहाँ पर वो काम कर रहे मित्रांनो। साहिल जादगार जातीनिशी तो काम करतोय आणि त्याला पूर्णतः जाणीव देखील आहे, तो गार पडलेला नाहीये, जातीनिशी काम करतोय। फिर एक बार अब यहाँ पर एक तेरी एक बेरी, यहाँ पर मैदान में कहानी, तीसरी ओवर की कहानी खत्म होती हुई और तीसरे ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 22 रन। जब तक खेल रुका तब तक के लिए मैं रुकता हूं, मेरी छुट्टी और डीजे की ड्यूटी। कम ऑन डीजे। मैदान के बीच टाइम पास हो रहा है। ये देखिए हमारा कैमरामैन देख क्या क्या कर रहे हैं, ये सही ढंग से यहाँ पर कैमरामैन काम करते हुए। धीरज है, नीरज यानी दीप है, अच्छा यहाँ पर काम करते हुए, अच्छी कोशिश। लेकिन गेंदबाज के मोर्चे पर गेंदबाज, ये यहाँ पर अच्छा स्ट्रोक है, वहां फील्डर मौजूद है, जब तक उठा नहीं पाते तब तक के लिए एक ही रन पूरा किया। आनंद और श्रीधर है और गेंदबाजी के मोर्चे पर अनिल गेंदबाजी करते हुए। अब खेलने की जिम्मेदारी बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर रहेंगे, श्रीधर रहेंगे और आनंद ऑन स्ट्राइक एंड पर है। आनंद देखेंगे ना तो डट कर खेल रहे, कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं खेल रहे, हवा में नहीं खेल रहे, ये इनके लिए ये सेफ शॉट खेल रहे, वही सूझबूझ वाली पारी खेलने का प्रयास है। ये देखिए अच्छी गेंद, लेकिन यहां पर देखेंगे ये गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ ट्रैवल होती हुई और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। लाइन से भटके तो पड़ेंगे पटके और झटका गाने का भी लगता हुआ। गाना नहीं आएगा, डीजे ऑपरेटर क्या कर रहे। कुल मिलाकर रन संख्या 27 रन। श्रीधर ने अभी तक अच्छी गेंद बल्लेबाजी की है। अनिल की अगली गेंद अंपायर के बगल से तेज कदमों के साथ इस बार ये खेलना चाहते थे, लेकिन ये गेंद ज्यादा बाहर गेंद है, इसलिए अंपायर ने वाइड का इशारा किया है और वाइड के साथ साथ स्कोर बढ़ता हुआ। कुल मिलाकर रन संख्या 28 रन। ये चौथा ओवर प्रगति पर है। गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे, सटीक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन पिछली वाली गेंद पर एक चौवा जरूर जुड़ा था इस श्रीधर ने। वही श्रीधर खेलने के लिए तैयार है और गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए ये गेंदबाज अनिल है। अनिल के ये अगली गेंद आगे जाकर खेलने की कोशिश, इस बार उठाकर खेला है स्ट्रेट ड्राइव के रूप में, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। लाजवाब दर्शक
थैंक यू, थैंक यू। डीजे ऑपरेटर जरूर रुकेंगे, डीजे ऑपरेटर जरूर रुकेंगे और नहीं रुकने का नाम ही ले रहे थे। तो हमारे कैमरामैन धीरज है ना, नीरज है ना, वो हमारे स्कूल के बच्चे देखो यहाँ पर ये टूर्नामेंट्स देखने को आए। यहाँ इस तरह का माहौल कब बन गया था, 2013 में देवराष्ट्र सांगली में बन चुका था, तो पूरा स्कूल छोड़ दिया था कमेंट्री सुनने के लिए। तो इसी तरह का ये मौका था इस बार। क्या बात है, लाजवाब दर्शनीय स्ट्रोक और ये चौवा तबा। श्रीधर क्या कर रहे हैं, बार बार यहाँ पर हमला मचा रहे हैं। जानू बिना रंग सनाए थैंक यू, थैंक यू। ये श्रीधर है ना, ये इस ओवर में सिर्फ 3 गेंदों का सामना किया, इसमें से एक वाइड है, लगातार 2 चौके लग चुके हैं। पिछले ओवर के 2 गेंदों पर भी चौके लगाए थे, लेकिन इस बार ये जो हैट्रिक का मौका था ना इनके पास था, लेकिन अंपायर की तरफ से इशारा देखेंगे तो वाइड का इशारा आता हुआ हैट्रिक ऑन रहेगी। हैट्रिक पहली हो चुकी है और एक हैट्रिक लगा रहे। ये देखिए क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से भटक गए। अनिल क्या कर रहे, कुल मिलाकर रन संख्या 38 रन, कुल मिलाकर रन संख्या 38 रन। ये देखिए उठा कर खेलने की कोशिश किया, लाजवाब फील्डिंग, क्या बात है। इस तरह की बल्लेबाजी आत्मविश्वास के साथ खेल रहे, हर एक गेंद को बाहर करने की कोशिश करते हुए। ये स्ट्रोक भी दर्शनीय स्ट्रोक था, ये सेफ्टी स्ट्रोक था। इस स्ट्रोक पर 1 रन मिलता हुआ और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, कुल मिलाकर रन संख्या 39 रन। तो ये देखेंगे तो चौथा ओवर प्रगति पर है और गेंदबाजी के मोर्चे पर अनिल है, खेलने की जिम्मेदारी आनंद के कंधों पर। आनंद भी देखिए क्या कर रहे हैं और यहां पर ये चौथा ओवर खत्म होता हुआ, 4 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर कुल मिलाकर 49 रन। जब तक खेल रुका है तब तक के लिए मैं रुकता हूं और सीधे चलता हूं डीजे की तरफ। 39 रन। थँक यू डीजे। अगं बाय जानू बिना रंगच नाही। मला वाटतं या श्रीधर शिवाय रंगच आलेला नाहीये। श्रीधरने रंग मात्र बदललेला आहे, तो स्वतःच्या फलंदाजीत दंग झालेला आहे आणि समोरच्या फलंदाजांचा जो आत्मविश्वास आहे तो भंग करण्याचा प्रयत्न केला। अशा प्रकारचा श्रीधर जो अत्यंत रंगतदार अशा प्रकारची फलंदाजी करतोय, धुवादार अशा प्रकारची फलंदाजी करतोय। प्लीज मैदानात टाइमपास होतोय, मैदानात टाइमपास होतोय। टाइमपास मात्र मैदानात होताना आपण पाहतोय, तो टाइमपास होता का म्हणे पंच। मीरा साहब अब और अमित वाटारे, मीरा साहब और अमित वाटारे, आपको घड़ी के पास जाना है, घड़ी की तरफ ध्यान देना है। टीम मीटिंग नहीं होनी चाहिए मैदान में। और गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज उमेश, इस बार ये देखिए उठाकर खेलने की कोशिश, कोई फील्डर नहीं है। यस गेंद बाउंड्री लाइन के तरफ नहीं जाएगी क्योंकि जो इलेक्ट्रिक वायर है उसको लगती हुई गेंद। तो इसी तरह से यहां पर ये 2 रन पूरे करते हुए 3 रन पूरे किए। अब आनंद को क्या करना है, आनंद को सिर्फ क्या करना है, सिर्फ 1 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट करना है। स्ट्राइक रोटेट करते तो जरूर यहां पर जो काम तमाम करने वाला बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक 8 पर जा चुका है। आनंद यहां पर मैदान में ज्यादा देर तक है लेकिन ज्यादा गेंदे नहीं खेले हैं। आप आनंद को अब यहां पर सिर्फ 1 रन निकालकर जो यहां पर स्ट्राइक है उस स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत है। इस बार ये देखिए कड़ा प्रहार करना चाहते थे, गैप ढूंढकर आपको सिर्फ 1 रन चुराना है। इस ओवर के गेंद देखेंगे तो अब गेंद डालने के लिए तैयार है उमेश और 2 गेंदें हो चुकी है और तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार है। 42 रन स्कोर बोर्ड पे। ये देखिए अब क्या कर रहे, डॉट गेंद 2 आ चुकी है, 2 गेंद डॉट आ चुकी है।
यहां पर टेंशन बढ़ रहा है पैविलियन में धानेश्वरी क्रिकेट क्लब उमरानी के। अब ये देखिए क्या कर रहे, एक नहीं दो नहीं तो तीन गेंद पर 3 रन आते ना तो भी यहां पर अच्छा हो सकता था, लेकिन यहां पर बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश। अब ये देखिए क्या कह रहे, जरूर यहां पर कान मंत्र देते हुए, और कान मंत्र का उपयोग करेंगे या नहीं ये भी देखने वाली बात रहेगी। नॉन स्ट्राइक एंड पर जो बल्लेबाज है वो पूरी तरह से आक्रमण कर चुका है विस्फोटक पारी खेलते हुए। अब इस बार जरूर कड़ा प्रहार करना चाहते थे, लेकिन 1 रन पूरा किया है। स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज जो श्रीधर है यहां ज्यादा स्ट्राइक लेने का प्रयास करते हुए, लेकिन इस बार 1 ही रन मिलता हुआ। गेंदबाजी की मोर्चे पर गेंदबाज उमेश है। उमेश की इस ओवर की लास्ट गेंद है, आखिरी गेंद है, 1-2 है। इस श्रीधर के लिए जरूर मौका मिलता हुआ, देखते क्या करते। आखिरी गेंद, इस बार ये अच्छी गेंद है, तारीफ करनी पड़ेगी, सराहना करनी पड़ेगी। जरूर यहां पर चौके लग चुके थे लेकिन बाद में कमबैक किया था। अब यहां पर ये ज्यादा डॉट गेंद डालने का प्रयास किया, इसमें सफल होने के बाद अब यहां पर मैं रुकता हूं, सीधे डीजे की तरफ चलता हूं। यू गए यू आए। थैंक यू, टीम मीटिंग हो रही है, अंपायर टीम मीटिंग हो रही है। थैंक यू डीजे। टीम मीटिंग नहीं होनी चाहिए, ऊंटवाड़ी टीम मीटिंग नहीं होनी चाहिए। 4 विकेट के नुकसान पर 43 रन, 43 लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 5 ओव्हर। पहा 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 43 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात। अब यहां पर ये आखिरी ओवर है, 6 गेंदों में कम से कम 10 रन आने चाहिए। 10 का दम दिखाने की जरूरत है। ये 6 गेंदे 6 से कम 10 रन आने चाहिए। 10 रन हो गए तो फाइटिंग टोटल होगा तो अच्छा हो सकता है। और गेंदबाजी के मोर्चे पर पीरू है, ये इसका निजी देखेंगे तो दूसरा ओवर है, और टीम के तरफ पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी। और ये पिछले गेंदबाज था ना, वो गेंदबाज का नाम बताएंगे। 5वें ओवर का गेंदबाज जो उमेश था, उस उमेश ने 1 ओवर में, ये 5वें ओवर ने सिर्फ 4 रन खर्च किए थे, वो भी चब्बा आया था। इस बार कड़ा प्रहार है। ओहो गलती कर बैठे, क्या छूटा, मैच छूटा, उसके बाद चौवा भी आया। तो इसी तरह से जहां विकेट था वहां पर 4 रन मिलते हुए। ये देखिए, थैंक यू डीजे, थैंक यू। तो इसी तरह से गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज आनंद की, ये देखिए उठाकर खेलने की कोशिश, कोई फील्डर नहीं है, और सीधी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। लगातार ये दूसरा चौका एक्स्ट्रा कवर की दिशा में।
थैंक यू थैंक यू। क्या वीडियो वायरल होने वाला है। आते आते छोटी गेंद थी, छोटी गेंद को देखा था, देखकर इस गेंद को बाहर कर दिया है। तो इसी तरह से ये परशु का चौका आता हुआ और चौबे के साथ साथ स्कोर बढ़ता हुआ। कुल मिलाकर रन संख्या देखेंगे तो 55 रन है। फाइटिंग टोटल हो चुका है। अब इस ओवर की ये देखिए उठने की यहाँ पर अच्छा जरूर प्रयास था। ओ हो भाग्य ने साथ दिया। थैंक यू 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 डीजे डीजे। कुल मिलाकर रन संख्या 60 रन है। तालियां बजनी चाहिए। 60 रन और आखिरी 4 गेंदे हो चुके, 2 गेंदे शेष है। सही बात है रे। स्कोरिंग अच्छा होना चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए। एक गेंद शेष है। अब ये देखिए ये देखिए ये देखिए क्या हो रहा है। पहला रन लिया है, दूसरी रन की कोशिश और दूसरा रन भी आराम से पूरा करते हुए 5 विकेट के तीसरी रन। क्या हो रहा है मैदान पे। चौथे रन के लिए दौड़ रहे। चौथा रन पूरा होगा या नहीं होगा ये भी देखेंगे। ये चौथा रन भागते समय आउट होते हुए। लेकिन डीजे 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 स्कोर बताने के बाद ही आपको बचना है क्योंकि मैच खत्म हो चुका है। पहला इनिंग हो चुका है। तीसरी ये जो तीसरी रन थी ये तीसरी बहुत अहम रन है क्योंकि ये तीसरे आखिरी गेंद पर 3 रन निकाले। जहां पर 1 रन था वहां पर 3 रन निकले। ये अच्छी बात है। कुल मिलाकर रन संख्या देखेंगे तो 62 रन है 5 विकेट के नुकसान पर। 63 रनों का टारगेट सेट किया है। टोटल फाइटल हो गया है 63 रन। जब तक यहाँ पर खेलूंगा है तब तक भाई डीजे की तरफ चलता हूं और सुनते हैं मीठा गाना। थैंक यू डीजे डीजे थैंक यू। कुल मिलाकर रन संख्या 63 रनों की जरूरत है। जीतने के लिए 64 रनों की जरूरत है। दोनों अंपायर हमारे तरफ आएंगे। दोनों अंपायर हमारे तरफ आएंगे। दोनों अंपायर हमारे तरफ आएंगे। इसके बाद होने वाला मैच है कॉप्स 11 जत वर्सेस बिजर्गी। कॉप्स 11 जत पुलिस स्टेशन वर्सेस बिजर्गी। आप टॉस के लिए कॉम्बॉक्स के पास आ जाइए। आपको बिजर्गी है। कॉप्स 11 बिजर्गी। कॉप्स 11 जत पुलिस स्टेशन। आपके सामने वाली टीम यहां पर मौजूद है। टॉस के लिए तैयार है। दोनों अंपायर अच्छी अंपायरिंग करते हुए मीरा साहब और अमित वटारे। चला क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या। धानेश्वरी क्रिकेट क्लब धानेश्वरी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 62 रन बनाए हैं और यहां पर ये अच्छी बल्लेबाजी की है। तो इसी तरह से अब खेलने के लिए तैयार रहेगी धानेश्वरी क्रिकेट क्लब उमरानी के उंटवाड़ी की जो टीम है। अब खेलने के लिए तैयार रहेगी, बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रहेगी। अब यहां पर पूरी तरह से परेशान रहेंगे उंटवाड़ी की टीम क्योंकि पहले टॉस जीता था और फील्डिंग का डिसीजन लिया था। जत पोलीस अमोलजी चव्हाण त्याचबरोबर राठोड साहेब आपण समालोचन कक्षाच्या दिशेने यायचं आहे। जत पोलीस स्टेशनचे हे कर्मचारी आहेत त्यांना
टॉस करिता मी या ठिकाणी मंचावरती आमंत्रित करतोय नए बल्लेबाज यहाँ पर मैदान में आते हुए। संदीप है और विजय भी है, तो इसी तरह से संदीप विजय, नाम में विजय है। आपको जीत पाना है तो अच्छी तरह से बल्लेबाजी करने की जरूरत है, क्योंकि सामने फाइटिंग टोटल देखेंगे तो 62 रन है। 6 ओवर का मैच है, 2 पावर प्ले के ओवर है। इसी 2 पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बन जाएंगे ना तो पूरी तरह से दबाव रहेगा अब डीसीसी धानेश्वरी क्रिकेट क्लब उमरानी के ऊपर। मित्रांनो, या ठिकाणी उमराणी जिल्हा परिषद मराठी शाळेचे हे विद्यार्थी आपण उमराणीच्या हा सामना बघण्याकरिता खास या ठिकाणी आलेले आहेत। कॅमेरामॅन आमचे त्या ठिकाणी जाणार आहेत, बरोबर जिल्हा परिषद उमराणीच्या या विद्यार्थ्यांकडे हा कॅमेरा फिरला जातोय। त्या ठिकाणचे जे विद्यार्थी आहेत ते निश्चितच अभिवादन करणार आहेत, हात वरती करणार आहेत। बघूया ते ओरडतात का, कशा प्रकारे त्या या स्पर्धेचा या कॅमेरामधून आनंद घेतात का ते पाहायचंय। आमचे कॅमेरामन त्यांच्या बाजूने गेलेले आहेत। मात्र आपण थेट आजच्या या सामन्याकडे वळतोय। आजच्या दिवसातला महत्वाचा सामना आहे कॉप्स 11 जत पोलीस स्टेशन। कॉप्स 11 जत पोलीस स्टेशन आपण लवकरात लवकर समालोचन कक्षाच्या दिशेने नाणेफेकीच्या कौलाकरिता यायचं आहे। रफीक ये सबसे अच्छे गेंदबाज है संघ में जिन्होंने सबसे 2 ओवर डाले थे, 2 रन खर्च किए थे, वही रफीक अब यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए। लेकिन पहले गेंद पर 1 रन खर्च चुके हैं। संघ में जो टूर्नामेंट्स हुआ था उस टूर्नामेंट्स में 2 ओवर डाले थे और 2 रन खर्च किए थे और 2 सफलता भी पाई थी। वही रफीक अब यहाँ पर संदीप ने यहाँ पर जरूर यहाँ पर 1 रन चुराया है और अब खेलने की जिम्मेदारी रहेगी स्ट्राइक एंड पर विजय। सामने रफीक, इस बार उठाकर खेलने की कोशिश हवा में गेंद, लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग, तारीफ करनी पड़ेगी, सराहना करनी पड़ेगी। ये जो खिलाड़ी है ये लीजेंड खिलाड़ी है। आपको फील्डिंग अच्छी लगी होगी तो तालियां बजनी चाहिए, नहीं तो यहां पर चौका हो सकता था। बहुत ही अच्छी फील्डिंग रफीक के लिए साथ देते हुए। अब ये क्रिकेट ऐसा खेल है, एक दूसरों को साथ देने की जरूरत है, ये टीम वर्क है। रफीक की अगली गेंद हल्के हाथों से खेला है, लेकिन इस बार बाल यहां पर अच्छी कोशिश की थी, थोड़े आगे जाते डाइव लगाते कैच बन सकता था, लेकिन यहां पर ये इतना प्रयास नहीं किया था। अच्छी कोशिश है लेकिन अच्छी गेंदबाजी है। एक लीजेंड खिलाड़ी है रफीक जादगार, यहां पर गेंदबाजी करते हुए। जो विकेट के पीछे विकेट कीपर देखेंगे ना तो आनंद बिरादार है, वो अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं, नंबर 1 विकेट कीपिंग करते हैं। संघ के मैदान में देखा था, जत के मैदान में देखा था और इनके साथ साथ जो खोजवाड़ी में टूर्नामेंट्स हुआ था वहां भी अच्छी विकेट कीपिंग की थी। और ये देखिए यहां पर गैप में तो जरूर गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे लेकिन गेंद के पीछे, लेकिन यहां पर ये चौका आता हुआ। संदीप है, ये संदीप ने इस गेंद को देखकर अच्छी तरह से बल्ले के बीचों बीच लिया और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में यहां पर चौका लगाते हुए रफीक के गेंद पर चौका लगाने के बाद अब रफीक पूरी तरह से तैयार होते हुए अगली गेंद। ये देखिए यहां पर खराब फील्डिंग संतोष नगराले की तरफ से ये खराब फील्डिंग है। खराब फील्डिंग के बदौलत जरूर यहां पर 1 रन मिलता हुआ और इसी 1 रन के साथ कुल मिलाकर रन संख्या 7 रन। कॉप्स 11 जत आपको टॉस के लिए मंच पर आना है। संतोष जी, अमोल जी चबान सर यहां पर मौजूद है टॉस के लिए। बिजर्गी की टीम टॉस के लिए आई है। बिजर्गी कैप्टन, मैदान में मैच अच्छा शुरू है। पहला ओवर खत्म होता हुआ 7 रन। ये देखिए अच्छी गेंद है, हल्के हाथों से किया है, कट करके यहां पर 1 रन चुराते हुए। टॉस के लिए मैं विनती कराऊंगा प्रधान अध्यापक कोकरे सर को, मैं विनती कर रहा हूं आपके हाथों द्वारा इस मैच का टॉस होगा। देखेंगे
अच्छी गेंद। दोनों कप्तान तैयार है। कॉप्स 11 जत और बिजर्गी के बीच का ये मुकाबला है। मैदान की तरफ एक अच्छी गेंद है। टॉस होता हुआ और हेड तो जत पुलिस स्टेशन ने मांगा है और टॉस जीतकर जत पुलिस स्टेशन ने का डिसीजन बैटिंग फर्स्ट बैट आपको फील्डिंग के लिए तैयार रहना है, क्योंकि मैदान में मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैदान में मैच शुरू है और एक अच्छी गेंद है और अच्छी गेंदों के साथ साथ अब यहाँ पर ये जो गेंदबाज है ना अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी तरह से इस राजू ने अच्छी बाजू संभाली है अपने टीम की। दूसरे ओवर में रफीक ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। सिर्फ पहले ओवर में ये देखिए अच्छी गेंद, क्या टिप्पा खिलाया है, ये तीखा। ओ यहां पर करीबी मामला हो सकता था। वहां से देखेंगे आवाज आ रही है, सपोर्टर्स देखेंगे तो ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं धानेश्वरी क्रिकेट क्लब उमरानी के लिए। बार उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन वहां फिल्टर मौजूद है, लेकिन ये पहला झटका लगता हुआ। थैंक यू। ये जो जरूर हवा में गेंद थी वहां पर उस गेंद तक जो उमरानी के जो अच्छे विकेट कीपर है आनंद बिरादार वो गेंद के नीचे आए और अच्छा यहाँ पर अच्छा कैच पकड़ा और इसी के साथ स्कोर देखेंगे तो 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन है। धोतर वाले से मामा इतना धोतर वाले मामा जरा जोरात धावा, बघूया कसे धावतात ते आम्हाला बघायचंय। शामू मामा प्लीज 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 आपल्याला लवकर जायचंय, लवकरात लवकर सीमा रेखेच्या बाहेर जायचंय। सीमा आणि रेखा ह्या धोका आहेत, तिथून तुम्हाला बाहेर जायचंय। शामू मामा मात्र या युट्यूब मध्ये कैद झालेले असणार आहेत पीटीसी कडून। पीटीसीचे कॅमेरामन चांगल्या प्रकारे ही क्षणचित्र टिपतायत। मात्र गोलंदाजी मार्कवरती असणार तो गोलंदाज रफीक असणार आहे, ज्याने पहिल्या षटकात चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी केली होती। पहिल्या षटकात एकूण धावा खर्च केल्या होत्या रफीकने 7 धावा खर्च केल्या होत्या, 1 गडी बाद झालेला आहे। एकूण धावा संख्या होती ती 9। दुसऱ्या षटकात फक्त एकूण 2 धावा खर्च झाले आहेत। दुसऱ्या षटकात राजूच्या फक्त 2 धावा खर्च झालेले आहेत। चांगल्या प्रकारची या ठिकाणी गोलंदाजी केली। तिसऱ्या षटकातला मारा मात्र हा रफीक करण्याकरिता सज्ज होतोय। डीसीसी उमरानी वर्सेस ऊंटवाड़ी के बीच का ये मुकाबला है। इस बार आगे आकर खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर अच्छी फील्डिंग। ये जो फील्डर है ना इसके पीछे गेंद दौड़ रही है, बार बार इसके पीछे दौड़ती हुई, लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग है, लेकिन अच्छी गेंद भी थी। बल्लेबाज देखेंगे तो स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज विजय, नॉन स्ट्राइक एंड पर बंधु है। क्या हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला है और ये अच्छी फील्डिंग के बदौलत जरूर यहां पर विजय के खाते में 2 रन और 2 रन जुड़ने के बाद कुल मिलाकर रन संख्या 11 रन। 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर है। (63 रनों का पीछा करना है। इस बार गेंद हवा में, लेकिन वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं है, लेकिन 1 रन पूरा किया है। 1 ही रन पर विजय को संतुष्ट होना पड़ता हुआ। अब बंधु के पास स्ट्राइक है, बंधु देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। सामने देखेंगे तो ये सफल गेंदबाज है इस मौसम के, और इस पूरे इलाके में देखेंगे ना तो रफीक का बोलबाला है, वही बल्लेबाज। इस बार उठाकर खेलने की कोशिश और ये शॉट फाइनल की तरफ गेंद ट्रैवल होती हुई, जब तक यहाँ पर उठा नहीं पाते तब तक के लिए 2 रन पूरे किए और इसी 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। अब यहाँ पर दूसरी ओवर की कहानी देखेंगे ना तो सिर्फ 2 रन खर्च किए, 1 विकेट जरूर चपकाया। राजू की ये दूसरी ओवर थी, लेकिन ये तीसरे ओवर में रफीक ने अभी तक 4 रन खर्च किए।
5 रन खर्च किए, लेकिन इस बार ये खराब फील्डिंग के बदौलत इस ओवर में देखेंगे 2 रन आ चुके हैं, यानी इस ओवर में अब तक 7 रन खर्च हो चुके हैं। अगली गेंद अंपायर के बगल से तेज कदमों के साथ 1-2 गेंद यहां पर डॉट आने की जरूरत है। सामने देखेंगे तो खेलने के लिए बंधु तैयार है। ये अच्छी गेंद, एक डॉट गेंद आ चुकी है। 3 ओवर के बाद 63 रनों का पीछा करते हुए 16 रन है। अच्छी तरह बांध कर रखने की कोशिश की। 18 गेंदें और जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत है। यहां पर मुकाबला देखेंगे तो धानेश्वरी क्रिकेट क्लब उमरानी की तरफ झुका हुआ है और गाना भी बजता हुआ। डीजे ऑपरेटर थैंक यू। अब गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज देखेंगे तो नई गेंदबाज लक्ष्मण है, जिसे हम पैर से लारा कहते हैं। लाराच्या चेंडूला या ठिकाणी भिरकावून दिला जातं। भिरकावल्यानंतर मात्र पाहायचं क्षेत्ररक्षक, खराब क्षेत्ररक्षण पाहायचं आहे। देखना पड़ेगा अब क्या हो रहा है। अंपायर का इशारा देखिए, आउट का इशारा था बा, और ये हिट विकेट है। थैंक यू। ये जो खिलाड़ी है ना, इस खिलाड़ी के ऊपर सब यहां पर दर्शक चिल्ला रहे हैं, लेकिन जीतने का मौका ज्यादा यहां पर मौका है धानेश्वरी क्रिकेट क्लब के लिए। तो सतीश यहां पर रहे बल्लेबाज मैदान में आते हुए। अच्छी गेंदबाजी, उठाकर खेलने की कोशिश की हवा में, और ये गेंदबाज खेल के बाद छक्का आता हुआ। सतीश ने देखे इस ओवर में एक छक्का जुड़ा है। फिर एक बार उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार चूकने के बाद जरूर यहां पर गली और स्लीप है, इसके बीच गेंद गुजरने के बाद 1 रन मुकम्मल किया, और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। कुल मिलाकर रन संख्या देखेंगे तो 23 रन है। इस बार देखना पड़ता है, 1 रन पूरा किया है, दूसरी की मांग कोई नहीं है। खेलने की जिम्मेदारी रहेगी बल्लेबाज सतीश के कंधों पर। सतीश देखते हैं क्या करते हैं। अगली गेंद अंपायर के बगल से, इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद हवा में है, लेकिन यहां पर कैच नहीं हो सकता है, ज्यादा दूर गेंद थी, और जो फील्डर है ये बॉडी लाइन पर थे, इसलिए यहां पर गेंद तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन अच्छी फील्डिंग है, और अच्छी फील्डिंग के बदौलत 1 रन खर्च होता हुआ, और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। कुल मिलाकर रन संख्या 25। इस बार ये फिर एक बार उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद ज्यादा कोशिश कर रहे थे, एफर्ट्स अच्छे थे, लेकिन अंपायर का इशारा देखेंगे, चौबा है, छक्का है, और पूरी तरह से जांच कर ही देना पड़ेगा। चौबा है, छक्का है, छक्के का इशारा आता हुआ या नहीं। छक्का, और कुल मिलाकर रन संख्या 31 रन है। बारह गेंदे और 32 रन की जरूरत है।
12 गेंदे और 32 रन की जरूरत है। एक दो बड़े स्ट्रोक मिले देखने को मिलेंगे ना तो यहां पर कहानी में बदलाव आ जाएगा, पलटवार हो सकता है। गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज राजू है जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, सिर्फ 2 रन खर्च किए थे, एक सफलता पाई थी। तो इसी तरह से ये बड़ा स्ट्रोक है, लाजवाब स्ट्रोक है, दर्शनीय स्ट्रोक है और ये अच्छी फील्डिंग, लाजवाब यहां पर फील्डिंग करते हुए। ये फील्डर का नाम भी बताएंगे, लक्ष्मण है, लारा है। लाराने मात्र या ठिकाणी जो चांगल्या प्रकारचा प्रयत्न केला होता त्यात तो यशस्वी ठरतोय। गोलंदाजी मार्गवरती असणार आहे तो राजू मात्र या ठिकाणी आपली चांगल्या प्रकारे बाजू सांभाळतोय। फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर, ओहो क्लीन बॉल। नए बल्लेबाज आपको दौड़कर आना है, नए बल्लेबाज दौड़कर आएंगे, कैसे दौड़ते देखते। ये क्या बात है, ये क्रिकेट की परिभाषा है, ये सुनते हैं इसलिए उनको खिलाड़ी बोलते हैं। ये सूझबूझ वाली यहाँ पर अच्छी समझदारी दिखाते हुए राजू की अगली गेंद। ये देखिए यहाँ पर खराब स्ट्रोक, मिस टाइम स्ट्रोक खेलते हुए स्विंग एंड मिस, और इसके बाद डॉट गेंद आती हुई और प्रशांत नए बल्लेबाज अब स्ट्राइक एंड पर है, नॉन स्ट्राइक एंड पर। एक क्लीन बॉल, अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक देखेंगे इस ओवर में 2 सफलता पाते हुए। थैंक यू। इसके बाद होने वाला मैच है कॉप्स जत पुलिस स्टेशन वर्सेस बिजर्गी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का डिसीजन लिया है। बिजर्गी आपको फील्डिंग को तैयार रहना है। अगली गेंद अंपायर के बगल से, इस बार की बॉल लगातार थैंक यू। विकेट की हैट्रिक ऑन है, विकेट की हैट्रिक ऑन है और राजू की गेंदबाजी आपको अच्छी लगी होगी तो तालियां बजनी चाहिए। क्या बात है, लगातार 2 विकेट पर 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट चपकाने वाला वही राजू अब गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे। नए बल्लेबाज मैदान में जल्द आना चाहिए, नए बल्लेबाज मैदान में उमेश आते हुए। ये देखिए, लेकिन यहां पर जो हैट्रिक का मौका था, लेकिन वहां ये मौका पूरी तरह से, और यहां पर ये डॉट गेंद आती हुई। गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी की है, नफीतुली गेंदबाजी राजू ने की। कुल मिलाकर रन संख्या देखेंगे तो 63 रनों का पीछा करते हुए 33 रन जीतने के लिए 6 गेंदे और 30 रन की जरूरत है। 2 छक्के 1 चौवा यहां पर काम तमाम कर सकता है, तो इसीलिए यहां पर छक्के की तलाश है, चौबे की तलाश है, 30 रन भी बन सकते हैं क्योंकि 6 नए विजय नामद यहां पर गेंदबाजी के मोर्चे पर पहली गेंद अच्छी है। विजय नामद खुद यहां पर इस गांव के सरपंच है, उस सरपंच यहां पर अच्छा काम करते हुए, अच्छा यहां पर उनका नाम देखेंगे तो नामद है और नाम भी अच्छा है, तो इसी तरह से ये अच्छा काम करते विजय जी। अगली गेंद अंपायर के बगल से तेज कर 5 गेंदे 30 रन की जरूरत, उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार स्ट्रेट ड्राइव जरूर है, वहां पेडर मौजूद है, लॉन्गॉन के खिलाड़ी ने इस गेंद को उठाया है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, 4 गेंदे शेष है और जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। विजय नामद यहां पर गेंदबाजी के मोर्चे पर है और राजू की कहानी कहेंगे तो हमारे स्कोरर बता रहे कि 4 रन दे चुके हैं और 4 विकेट चपकाए, 2 ओवर डाले हैं। कुल मिलाकर रन संख्या देखेंगे तो 33 रन।
ये देखिए हवा में गेंद है, लेकिन यहाँ पर और एक उम्मीदों को झटका लगता हुआ। बंधु वापस जाएंगे। इसके बाद होने वाला मैच है कॉप्स पुलिस स्टेशन जद वर्सेस बिजर्गी। बिजर्गी की टीम को मैं गुजारिश कर रहा हूं, आपको बाउंड्री लाइन पर तैयार रहना है, फील्डिंग के लिए तैयार रहना है। आखिरी गेंद होने के बाद जल्द ही जल्द आपको मैदान में जाना है। आपकी जो स्ट्रैटेजी है ना, आपकी जो चर्चा है ना, मैदान के बाहर ही होनी चाहिए। बिजर्गी आपकी जो चर्चा है ना, वो बाहर ही होनी चाहिए। जल्द ही जल्द आपको फील्डिंग पे लानी है ये मैच खत्म होने के बाद। टीम मीटिंग ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कम समय है, ज्यादा मैचेस शेष है और एक डॉट गेंद आती हुई और ओवर खत्म होता हुआ। इस ओवर में देखेंगे तो रन खर्च हुए हैं, एक ही रन खर्च हुआ है, एक विकेट पाए हैं। ये भी सफल गेंदबाज है। तो इसी तरह से ये मैच जीता है धानेश्वरी क्रिकेट क्लब, उमरानी मैच जीतता है।